Ignited Minds Tutorials is bridging the gap between students and quality education with its enlightening series of video lectures on the topic of mechanical properties of fluids, physics for IIT/CBSE Class 11/Maharashtra State Board Class 12. Fluid mechanics, a fundamental branch of physics, studies the behavior of fluids under different conditions, and understanding its mechanical properties is crucial. These video lectures simplify complex concepts with detailed explanations, making them accessible to students of all levels. By covering topics such as pressure, viscosity, surface tension, buoyancy, and fluid dynamics, students gain a holistic understanding of fluid mechanics. The tutorials cater to the specific requirements of IIT aspirants, CBSE Class 11 students, and Maharashtra State Board Class 12 students. The comprehensive approach of these lectures ensures that students thoroughly comprehend the subject matter, strengthen their analytical skills, and prepare effectively for their exams. The videos not only cover theoretical explanations, but also provide practical examples and problem-solving techniques. By presenting real-life applications of fluid mechanics, students develop a deeper appreciation for the subject and its relevance in various fields. Ignited Minds Tutorials' commitment to delivering quality education is evident through their systematic and knowledge-oriented approach. With their series of videos on the mechanical properties of fluids, students receive a valuable educational resource that empowers them to excel in their academic pursuits and ignite their minds for a brighter future. A glass plate of length 10, हम सरफेस टेंशन के सवाल कर रहे थे पीपल, ठीक है. A glass plate of length 10 सेंटीमीटर, ठीक है, breadth 4 सेंटीमीटर and thickness 0.4 सेंटीमीटर, weighs 20 ग्राम in air. तो एक ग्लास प्लेट है और इसका वेट भाई साहब कितना है, 20 ग्राम in air. It is held vertically with long side horizontal and half the plate immersed in water. तो इस प्लेट को आधा हमने immerse किया हुआ है वाटर में, ठीक है. What will be its apparent weight? Surface tension of water is 70 dyne per centimeter, ठीक है. ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ द प्लेट कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ कितना है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है. और यहाँ पे भाई साहब आपको थिकनेस दिया हुआ है कितना, 0.4 सेंटीमीटर ऑफ द प्लेट. मास प्लेट का दिया हुआ है कितना है, 20 ग्राम से, ठीक है. और आपका सरफेस टेंशन दिया हुआ है 17 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक है. क्या क्या फोर्सेस इस पे लगेंगे बताओ. जब आप किसी आधा प्लेट उबा हुआ है, ठीक है, तो इस पे एक लगेगा अपथ्रस्ट, नीचे लगेगा इसका वेट, और क्या लगेगा भाई साहब, इस पे लगेगा एक सरफेस टेंशन. समझ में आ रहा है भाई साहब, सरफेस टेंशन. जनरली आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को सिर्फ फॉलो करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कब, जब आप कोई ऐसी चीज ले रहे हैं जिसका वाटर की सतह पे रुकना नामुमकिन है, ठीक है. वहां पे आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब सीधा आप यू और डब्ल्यू में देखेंगे, ठीक है, जो बड़ा उसके हिसाब से वो सिंक होगा या फ्लोट होगा, ठीक है. लेकिन इस चीज ऐसी चीजों में आपको सरफेस टेंशन को भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, ठीक है. हालांकि सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो सिर्फ हल्की चीजों में ही लगता है. ओके, इसको ऐसे समझो, ठीक है. आपने एक इस एक्सपेरिमेंट को तुम घर पे भी कर सकते हो. एक छोटा सा एक ऐसा पतीला ले लो भाई साहब, उसमें पानी भर लो, और उसमें एक नीडल रखो, नीडल नीचे चला जाएगा, ठीक है. अभी तुम क्या करो भाई साहब, एक टिश्यू पेपर लो, टिश्यू पेपर को रखो उस पानी के सतह पे, तो फ्लोट करेगा वो, और उसके ऊपर एक उसी नीडल को रखो. अभी धीरे धीरे तुम क्या देखोगे, थोड़ी देर बाद टिश्यू पेपर पूरा पानी सोख कर लेगा, जिसके वजह से वो भारी हो जाएगा और नीचे चला जाएगा, लेकिन नीडल वहीं पर रह जाएगा, ठीक है. नीडल इसलिए रह जाएगा क्योंकि अभी उसके ऊपर सरफेस टेंशन एक्ट कर रहा है. तो सरफेस टेंशन डिपेंड करता है कि कितना सरफेस आपने लिक्विड के सतह पे रखा है. लिक्विड के सतह पे किसी चीज़ को अगर आप रखते हो बड़े आराम से, तो वहाँ पे सरफेस टेंशन लगेगा. सरफेस टेंशन इज ओनली अ सरफेस फिनोमिना. आप इस चीज़ को समझो. आप मतलब स्विमिंग पूल में कूद रहे हो, ठीक है, स्विमिंग पूल में सीधा ऊपर से जंप मार रहे हो, वहाँ पे सरफेस टेंशन नहीं लगेगा, ठीक है. लेकिन अगर आप बहुत आराम से स्विमिंग पूल के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे सरफेस टेंशन लगेगा. क्यों?
सरफेस टेंशन जो है आपका सरफेस फिनोमिना, वही फिनोमिना है। देखो यहाँ पे जैसे आपने एक टिश्यू पेपर लिया और टिश्यू पेपर सोक होकर नीचे चला गया, ये पिन फ्लोट होता रहा, वही पिन तो पिछली बार भाई साहब नीचे चला गया था, है ना, वही जो पिन था या जो नीडल था वो नीचे चला गया था, लेकिन अब की बार नहीं जा रहा है, क्योंकि पिछली बार तुमने ऐसे ढाल से डाल दिया था, तुमने उसको आराम से रखा नहीं था, आराम से उसको प्लेस नहीं किया था, आराम से प्लेस नहीं किया था, इसलिए तुमने उसके सरफेस के, वाटर के सरफेस के फिनोमिना को तुमने यूज ही नहीं किया है, और सरफेस टेंशन सरफेस फिनोमिना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अभी यहाँ पे देखो क्या क्या फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही होंगी। एक फोर्स होगा भाई साहब इसका अपथ्रस्ट वाला फोर्स। अपथ्रस्ट वाला फोर्स क्या होता है? जब भी आप किसी चीज को भाई साहब किसी लिक्विड में डुबोते हैं, सो देयर इज एन अपथ्रस्ट दैट एक्ट्स ऑन इट एज पर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। दिस इज अपथ्रस्ट, सिंपल। ओके, वेट विच इज गोइंग टू एक्ट डाउनवर्ड्स, और सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन वाला फोर्स क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल बी द सरफेस टेंशन दैट इज एक्टिंग अपवर्ड्स? ये फोर्स क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो आपका फोर्स क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। क्लियर है? ओके, चलिए भाई साहब, तो पहला फोर्स क्या है भाई साहब इसका? नीचे वाला फोर्स। ठीक है, नीचे वाला फोर्स कितना हो जाएगा? m इंटू जी, 20 ग्राम इंटू 980 डाइन, 980 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करेंगे तो अपना फोर्स किस में आ जाएगा? डाइन में आ जाएगा, जिसको अपन 20 ग्राम फोर्स भी बोल सकते हैं, 20 ग्राम फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स मतलब क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू लेंथ ऑफ द प्लेट इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। तो लेंथ ऑफ द प्लेट इन कॉन्टैक्ट विद वाटर कितना हो जाएगा? देखो, दिस विल बी सिग्मा इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस थिकनेस, है कि नहीं भाई साहब? 2 इंटू लेंथ प्लस थिकनेस, ट्वाइस हो जाएगा। ये 2 वाला क्यों आता है मुझे भी नहीं मालूम, मैंने आपको बार बार बताया, ये एक ऐसा फिनोमिना जो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। ये 2 कहीं पे लगाते हैं, कहीं पे नहीं लगाते, बट ये 2 इसके लिए है कि ओ ये एक फिल्म है तो इसका ये वाला और ये इसका ये वाला साइड, सो दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। खैर, तो यहाँ पे फोर्स इंटू लेंथ ऑफ द प्लेट इन कॉन्टैक्ट विद वाटर, दैट इज ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस थिकनेस। देखो ये प्लेट है ना भाई साहब, ठीक है, ये प्लेट है पानी के अंदर है, ठीक है, ट्वाइस इंटू लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, और थिकनेस, ये वाला थिकनेस और ये वाला थिकनेस, दैट इज हाउ ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस थिकनेस है। समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला लेंथ इन कॉन्टैक्ट विद वाटर है ना भाई साहब, तो ये आपका लेंथ, ये आपका लेंथ, ये आपका लेंथ से थिकनेस और ये आपका थिकनेस, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ क्या हो गया? ट्वाइस इंटू लेंथ, और ये थिकनेस प्लस ये थिकनेस क्या हो गया आपका? ट्वाइस इंटू थिकनेस, पेरीमीटर बेसिकली। ठीक है, ओके, तो ये हो गया फोर्स इंटू लेंथ प्लस थिकनेस। समझ में आता पीपलम? फोर्स हो गया आपका कितने भाई साहब? यहाँ पे दिया हुआ 70 डाइन, दैट इज आपका सरफेस टेंशन, इंटू ट्वाइस इंटू लेंथ आपको दिया हुआ है भाई साहब कितना? 10 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितना दिया हुआ है? थिकनेस इज 0.4 सेंटीमीटर। ये तमाम कार्यक्रम करोगे तो तुम्हारा कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे? 70 इंटू 20.8 डाइन, है कि नहीं भाई साहब? डाइन कैसे आया? डाइन पर सेंटीमीटर था और यहाँ पे क्या था? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कर दिया तो कितना आया? डाइन आया ना भाई साहब। इस डाइन को तुमको किस में लाना है भाई साहब? तो अगर ग्राम फोर्स में लाना है तो ये डिवाइडेड बाय 980। अगर तुमको इसमें रखना है ना भाई साहब, इसमें रखोगे तो भी रख सकते हो। फाइनल आंसर को भाई साहब तुम ग्राम फोर्स में कन्वर्ट कर लेना, या तुम अगर ग्राम फोर्स में जैसे जिसको कन्वर्ट किया है वैसे इसको अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइडेड बाय 980। ठीक है, तो दिस विल बी योर 1.4857 जो भी है ग्राम फोर्स। ठीक है, अपटर्स ड्यू टू लिक्विड क्या हो जाएगा? ये तो भाई साहब एकदम बचपन से पढ़ते आए हो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डी इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा? अभी चाची, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा? जितना वो डूबेगा। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पे, ये भाई साहब आधा डूबा है, आधा। ठीक है, इट हैज जस्ट गॉन हाफ। ठीक है, मतलब क्या है? देखो इसमें कैसे लिया गया है, ये आपका लेंथ लिया गया है, ये ब्रेथ लिया गया है और इसको हाइट लिया गया है। समझ में आ रहा है? ये प्लेट है, ये लेंथ लिया गया है, ये ब्रेथ है और ये आपका थिकनेस है। ठीक है, ये भाई साहब अभी आधा डूबा है, तो कितना वॉल्यूम अंदर है? लेंथ, ब्रेथ बाय 2 और थिकनेस, इतना वॉल्यूम अंदर है, और इतने वॉल्यूम के लिए ही भाई साहब उस पर अपथ्रस्ट लगेगा। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट प्लेट इनसाइड वाटर? लेंथ इंटू ब्रेथ बाय, बहुत जोर से उबासी आ रही, मारो भाई, लेंथ
इंटू ब्रेथ बाई 2 और क्या हो जाएगा भाई साहब आपका थिकनेस, ठीक है। तो दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लेंथ इंटू ब्रेथ बाई 2 इंटू थिकनेस, रो इंटू जी, 10 इंटू 4/2 इंटू 0.4, ठीक है, रो हो गया आपका। और इसको आपका डाइन में हो जाएगा ये, दिस विल बी बेसिकली डाइन। इसको आप 980 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 980 से मल्टीप्लाई करके 980 से डिवाइड करोगे तो 8 ग्राम फोर्स आ गया। सो एपरेंट वेट कितना हो जाएगा भाई साहब? टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज हाउ मच? 20 GF एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। और आपका भाई साहब यहाँ पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विच इज एक्टिंग अपवर्ड्स, ये भाई साहब एक्टिंग अपवर्ड्स है, तो माइनस होना चाहिए, नहीं ये डाउनवर्ड होगा। सरफेस टेंशन का फोर्स भाई साहब नीचे की तरफ होगा ना। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है, मतलब नीचे की तरफ पुल करता है। सो दैट इज बेसिकली एक्टिंग डाउनवर्ड्स, दैट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। और इसका भाई साहब अपवर्ड फोर्स कितना है? अप थ्रस्ट -8। सो दिस विल बी द टोटल एपरेंट वेट, मतलब वो 20 ग्राम फोर्स का कितना एपरेंट वेट हो जाएगा? 13.48। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? Okay. If a number of little droplets of water of surface tension rho, all of the same radius r, combined to form a single drop of radius r, and the energy released is converted into kinetic energy, find the velocity acquired by the bigger drop, ठीक है। सो आपका वेलोसिटी कितना एक्वायर होगा बिगर ड्रॉप में, ठीक है। ओके, तो पहली बात तो भाई साहब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो आपका सरफेस टेंशन हर एक का कितना है? रो, ठीक है, सॉरी सिग्मा, हर एक का सरफेस टेंशन आपका सिग्मा हो गया। अभी अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम रेडियस ऑफ अ स्मॉलर ड्रॉप, रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप भाई साहब कितना है? रेडियस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप इज हाउ मच हम पीपल आर, एंड रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप पीपल इज हाउ मच आर। तो if a number of little droplets of water, कुछ number of little droplets of water, let's say this number is n, ठीक है, ये आपका n number of droplets है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ n smaller droplets, volume of n smaller droplets is equal to volume of one bigger droplet। बोल सकते हैं भाई साहब वॉल्यूम ऑफ n स्मॉलर ड्रॉपलेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिगर ड्रॉपलेट। वॉल्यूम ऑफ एक स्मॉलर ड्रॉपलेट का कितना होगा? आपको स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है, तो n का कितना हो जाएगा? n इंटू 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। सो दैट विल बी n इंटू 4/3 पाई r क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिगर ड्रॉपलेट, दैट इज 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। क्लियर है? जितना ध्यान अभी दे रहा है ना, यही पूरे साल दिया होता तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत देर, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? r/r³। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, क्लियर है। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? r³/r³। तो इतने तो आपके ड्रॉपलेट्स होने चाहिए, ठीक है, इतने ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है। ओके, मास ऑफ द बिगर ड्रॉपलेट भाई साहब कितना हो जाएगा? क्यों मास को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब? यहाँ पे आपको देखो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो मास ऑफ द बिगर ड्रॉप कितना हो जाएगा? व्हाट इज मास ऑफ बिगर ड्रॉप? मास ऑफ बिगर ड्रॉप विल बी इक्वल टू इट्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम भाई साहब कितना है? 4/3 पाई r³ है, और इसकी डेंसिटी कुछ भी दिया नहीं हुआ, चलो डेंसिटी हमने मान लिया कि ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप है, तो इसकी डेंसिटी हो गई, ठीक है। सो भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी? इफ अ नंबर ऑफ ऑल ऑफ सेम रेडियस कंबाइन टू फॉर्म अ ड्रॉप एंड एनर्जी 1 क्यों ले लिया है भाई साहब? यहाँ पे वाटर लिया हुआ है तो 1 होगा, लेकिन ऐसा तो बोला नहीं है भाई। अच्छा वाटर है, ओके, ठीक है। तो वाटर है तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक के हिसाब से 4/3 पाई r³ ग्राम हो गया ये, ठीक है। ओके, नाउ एनर्जी रिलीज कितना हो जाएगा भाई साहब? एनर्जी, वर्क डन और एनर्जी, ये अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब। वर्क डन और एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज और डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है, इनटू इंक्रीज और डिक्रीज इन सरफेस एरिया, ये अपन पढ़ चुके हैं भाई साहब। तो यहाँ पे भाई साहब हमने उस दिन पढ़ा था वर्क डन इज इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज इन सरफेस टेंशन इज इक्वल टू इंक्रीज इन एरिया ऑफ द लिक्विड सरफेस, ठीक है।
सो इंक्रीज और डिक्रीज वॉट एवर इट इज। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इनटू 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 एरिया में चेंज है ना, सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ऑफ एरिया। सरफेस टेंशन की वैल्यू भाई साहब कितनी है यहाँ पे, सिग्मा। ठीक है, और चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा बोलो, 4 पाई। ठीक है भाई साहब, टोटल एरिया ऑफ एन ड्रॉप्स कितना होगा, टोटल एरिया ऑफ एन ड्रॉप्स, एक ड्रॉप का एरिया कितना होगा भाई साहब, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एन ड्रॉप्स का कितना एरिया हो जाएगा, एन 4 पाई आर का स्क्वायर। और एरिया ऑफ बिगर ड्रॉप कितना होगा, एरिया ऑफ बिगर ड्रॉप, एरिया ऑफ बिगर ड्रॉप ये भाई साहब होगा आपका 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो चेंज इन एरिया कितना हो गया, एन, तो डेल्टा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, एन 4 पाई आर का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर का स्क्वायर। क्लियरम क्लियरम क्लियरम। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा 4 पाई को अपन ने कॉमन निकाल लिया, यहां पे देखो 4 पाई को अपन कॉमन निकालते हैं अगर, तो कितना बचेगा, एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर वाला स्क्वायर, ये हो गया आपका वर्क डन और एनर्जी। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है। ओके, अभी अपन भाई साहब जो अभी तक निकाल चुके हैं इस इन टर्म्स ऑफ दिस, ठीक है, हमने यहां पे निकाला था एन की वैल्यू क्या है, आर कैपिटल आर क्यूब बाई स्मॉल आर क्यूब, इसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं यहां पे। ठीक है, तो अभी भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी वर्क डन और एनर्जी, दैट विल बी सिग्मा इंटू 4 पाई, सिग्मा इंटू 4 पाई एन आर का स्क्वायर, एन इंटू आर का स्क्वायर भाई साहब क्या हो जाएगा, अगर एन की वैल्यू डाले अपन, ठीक है, एन की वैल्यू यहां पे कितना है, आर क्यूब बाई आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब बाई आर क्यूब इंटू आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, क्लियरम क्लियरम क्लियरम, तुड़ुम तुड़ुम। ठीक है, आपका भाई साहब एक आर बचा रह जाएगा, और यहां पे अगर मैंने आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया तो यहां पे कितना हो जाएगा, देखो सिग्मा 4 पाई तो बाहर है ही, आर स्क्वायर और आर क्यूब में आर स्क्वायर को बाहर निकाला जा सकता है। चलो भाई साहब, तो अगर भाई साहब यहां पे निकाल लिया हमने आर, इनफैक्ट आर क्यूब को अगर हम बाहर निकाले, आर क्यूब को अगर हम बाहर निकाले तो ये आर क्यूब बाहर चला गया, यहां पे कितना बचा 1 बाई आर। ठीक है, यहां पे कितना था देखो आर स्क्वायर को आर क्यूब से अगर तुम डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1 बाई आर, तो इसको क्या लिख सकते हो 1 बाई आर, और अगर तुम इसको आर को मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर ही आ जाएगा, है ना, इस कैपिटल आर को आर क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर जो अंदर था, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं जीवन भाई, बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, तो आपका यहां पे हो गया सिग्मा। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मचम पीपलम, सो दैट विल बी 4 पाई, दिस इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब सिग्मा 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर। ठीक है, क्लियरम 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 पीपलम। ठीक है, ओके, अभी देखो भाई साहब यहां पे इसको अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो देखो यहां पे कितना है 4 पाई है ना भाई साहब। ठीक है, क्या 4 को अपन ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 4/3 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं। क्यों हमारा लिखने का मकसद यहाँ पे ये है, क्योंकि ये आपका मास है ऑफ द बिगर ड्रॉप, देखो 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, सो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा 1 बाई आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा बोलो, दिस वन विल बी मास, है कि नहीं, मास ऑफ द बिगर ड्रॉप, सो दैट विल बी हाउ मच 3 टाइम्स मास ऑफ द बिगर ड्रॉप इनटू क्या होगा क्या होगा क्या होगा बेटा 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर। ठीक है, क्लियर है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं 3 मास इंटू सिग्मा विच इज सरफेस टेंशन, यहाँ पे हो गया आपका आर इंटू आर। ठीक है, और इधर हो गया भाई साहब कैपिटल आर माइनस आर। ठीक है, क्लियरम क्लियरम क्लियरम, ये हो गया आपका, ये हो गया भाई साहब आपका वर्क डन और एनर्जी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, वर्क डन और एनर्जी सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया का हमने निकाला, तो यहाँ पे ये वाला देखो, आप बोलोगे कहां से ला रहे हो भाई साहब, इसे कोई कुछ दिया नहीं हुआ है, हमको यहाँ पे पहुंचना कहां तक है भाई साहब, काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचना है। हमने m क्यों ही लिया है यहाँ पे, देखो समझो इस चीज को, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है,
मास ऑफ द बिगर ड्रॉप, इसीलिए हमने भाई साहब जबरदस्ती का m को लिया हुआ है यहाँ, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ हमारा आंसर भाई साहब किस में आना चाहिए, इसको यूज कर सकते हैं जो दिया हुआ है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, इन तीन ही चीजों को यूज कर सकते हैं, बाकी सब हमारे एजम्पशंस हैं। तो ये हो गया आपका वर्क डन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? और ये वर्क डन क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, यही आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा भाई साहब, ठीक है। सो यही आपका वर्क डन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। सो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज द वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू द वर्क डन, दैट इज 3m रो, ठीक है, r माइनस r अपॉन r, ठीक है, mm कैंसलम, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3 रो r माइनस r अपॉन r, और इधर 2 इंटू 3 दैट इज 6, है ना, ये 2 इधर आ गया भाई साहब। तो v की वैल्यू वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 सिग्मा कैपिटल R माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इंटू स्मॉल r, ये हो जाएगा आपका वैल्यू भाई साहब। क्या ये समझ में आ रहा है या रिपीट टेलीकास्ट चाहिए भाई साहब? कुछ नंबर ऑफ ड्रॉप्स थे आपके जो कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बन रहे हैं, आपको ये बताना है कि ये नंबर ऑफ ड्रॉप्स जो थे, ठीक है, इफ अ नंबर ऑफ लिटिल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा all of the same radius combined to form a single drop, the energy released is converted into kinetic energy। तो ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है भाई साहब, तो इसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया है हमने, ठीक है। तो आप पहले क्या निकालेंगे भाई साहब, लेट्स से आपने मान लिया कि n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं, n नंबर ऑफ ड्रॉप से आप क्या निकाल रहे हैं, n नंबर ऑफ ड्रॉप से आप बेसिकली n की वैल्यू निकाल रहे हैं, विच यू गेट एज r³ बाई r³। वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बिगर ड्रॉप, विच इज n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई बिगर r का क्यूब। तो n की वैल्यू आपकी फटाक से आ गई कितनी, r³ बाई r³, ठीक है, क्योंकि n आपको दिया नहीं हुआ है, आपने माना हुआ है, तो इसका एक रिप्लेसमेंट आपको मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नाउ मास ऑफ द बिगर ड्रॉप भाई साहब कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू इट्स डेंसिटी, और वॉल्यूम मतलब क्या है, 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, तो आपका कितना हो गया यहाँ पे भाई साहब 4/3 पाई r³, ये मास ऑफ द बिगर ड्रॉप हो गया, ठीक है। ओके, मास को हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमको मास तक ही आना है, क्योंकि आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, उसको इक्वेट करने के लिए हमको मास ही चाहिए, इसीलिए हमने वहां पे मास का कन्वर्जन किया हुआ है, ठीक है। तो 4/3 पाई r³, दिस विल बी द मास। अभी हमारा भाई साहब इन आपका जो चेंज या एनर्जी रिलीज होगी, वर्क डन या एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। हम यहाँ पे देखेंगे चेंज इन एरिया कितना हुआ है भाई साहब, आपके n नंबर ऑफ ड्रॉप्स का एरिया कितना होगा, n इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, और बड़े वाले ड्रॉप का एरिया कितना होगा 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो इसमें चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, n पाई स्मॉल r का स्क्वायर माइनस n पाई r स्मॉल r का स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर, विच गिव्स यू हाउ मच, 4 पाई nr का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। ये हो गया आपका चेंज इन एरिया। तो अभी अगर हम करेंगे वर्क डन विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई nr का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू 4 पाई, और यहाँ पे भाई साहब आपने क्या किया, यहाँ पे लेट्स से r³, इस n की जगह पे आपने क्या डाल दिया अभी, r³ बाई r³। तो यहाँ पे r³ और r³ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आया बोलो, दिस विल बी r³ माइनस r का स्क्वायर, r³ माइनस r का स्क्वायर, एक r नीचे रह गया भाई साहब, इन दोनों में से आपने r³ को बाहर निकाला, तो 1 बाई स्मॉल r माइनस 1 बाई बिगर r, ठीक है, ये आ गया भाई साहब आपका। अभी आपको मालूम है यहाँ पे 4 पाई r³ की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, m, तो आपने क्या लिख दिया भाई साहब, यहाँ पे हो गया आपका m, ठीक है। तो ये हो गया आपका em सिग्मा 1 बाई r माइनस 1 बाई r। इस तरह से अगर आप देखोगे तो आपका टोटल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी इतनी आ जाएगी। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट, क्लियर है? ओके। If a number of little droplets of water each of radius r, coalesce मतलब होता है भाई साहब कंबाइन, ठीक है, number of little droplets of water each of radius r combine to form a single drop of radius r, show that the rise in temperature will be given by delta T is equal to this। देखो भाई साहब अलग अलग चीजें हैं, इसके पहले आपको क्या पूछा गया, काइनेटिक एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी, तो मतलब वहां पे
जो चेंज इन एनर्जी था, मतलब जो लॉस हुआ एनर्जी का, वो कहां गया भाई साहब, इस बड़े वाले के वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में। यहां पे ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी कन्वर्जन हो रहे हैं, ठीक है। यहां पे आपको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ओके। तो ठीक है, आपका डेल्टा थीटा दैट विल बी द राइज इन टेम्परेचर। कैलोरीमेट्री की थोड़ी बहुत वैल्यूज मालूम है? कैलोरीमेट्री में हीट एनर्जी कितना होता है? राजू को देखो, अरे यार मालूम तो यहां तक है। अरे क्या, बोलो बोलो जल्दी, कैलोरीमेट्री में क्या होता है? आपको अगर मैं कैलोरीमेट्री में mc डेल्टा टी, ये वाला स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा थीटा राइज इन टेम्परेचर, हीट एनर्जी कितना हो जाएगा बोलो? देखो ना, ये थोड़ा सा आइडिया देता हूं भाई साहब। एक होता है आपका लेटेंट हीट, है ना, और एक होता है भाई साहब आपका स्पेसिफिक हीट। लेटेंट हीट इस सवाल में तो जरूरत नहीं है। लेटेंट हीट की जरूरत तब पड़ती है जब स्टेट का कन्वर्जन हो रहा हो। समझ लो भाई साहब आपका बर्फ से पानी हो रहा हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, m इंटू एल, वेयर m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस एंड l इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होता है, मतलब हीट एनर्जी गेन इज इक्वल टू mc डेल्टा t, ये होता है, वेयर m इज द मास ऑफ द सब्सटेंस, c is basically the specific heat capacity, specific heat capacity, और डेल्टा t भाई साहब क्या होता है, राइज और फॉल इन टेम्परेचर, राइज और फॉल इन टेम्परेचर, ठीक है। ये वाला आपने कैलोरीमेट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स से यहां पे क्या बोला जा रहा है, वेयर दिस इज अ सरफेस टेंशन, ठीक है। अगेन हम भाई साहब कैसे चलेंगे, तो आपका वही सेम चीज है। देखो, इफ अ नंबर, तो लेट से let n be the number of smaller drops, ठीक है। let n be the number of smaller drops, ठीक है भाई साहब, क्लियर है, समझ में आता हूं? ओके ओके ओके। ये हीट प्रोड्यूस क्या कर दिया वैसा? ओके, J इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। चलिए भाई साहब इसको करते हैं, लेट n बी द नंबर ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स, ठीक है। और r तो आपका दिया ही हुआ है भाई साहब, रेडियस ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप है, तो वॉल्यूम ऑफ n स्मॉलर ड्रॉप्स, वॉल्यूम ऑफ n स्मॉलर ड्रॉप्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बिगर ड्रॉप, ठीक है कि नहीं भाई साहब? तो n स्मॉलर ड्रॉप्स का क्या हो जाएगा, n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई बिगर r का क्यूब, 4/3 पाई m समरम, ठीक है। तो n r क्यूब इज इक्वल टू r का क्यूब, ठीक है। ये हो गया भाई साहब आपका पहला रिलेशनशिप, जो आपने पिछली बार सवाल में किया था वैसा यहां पे भी है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका दिस जो है राइज इन टेम्परेचर। अभी देखो वर्क डन कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वर्क डन, तो आपका पहला हम देखेंगे चेंज इन एरिया कितना हुआ है, ठीक है। तो एरिया ऑफ वन स्मॉलर ड्रॉप और एरिया ऑफ n स्मॉलर ड्रॉप्स, समझम कितम बोलो भाई साहब, n स्मॉलर ड्रॉप्स, एरिया ऑफ n स्मॉलर ड्रॉप्स r स्क्वायर, तो n इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ बिगर ड्रॉप भाई साहब कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल R वाला स्क्वायर, है ना भाई साहब, ठीक है। तो चेंज इन एरिया डेल्टा A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n 4 पाई R का स्क्वायर माइनस 4 पाई R का स्क्वायर,
तब भाई साहब यहाँ पे 4 पाई को बाहर निकालो, एन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करो भाई साहब, तो इधर कितना हो गया वाला 4 पाई एन आर स्क्वायर, क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है भाई साहब आर क्यूब बाई आर क्यूब, आर क्यूब बाई आर क्यूब इंटू आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, तो ये कैंसिलम ये कैंसिलम, तो दिस विल बी 4 पाई, लेट्स से हमने आर क्यूब को बाहर निकाला तो इधर कितना बचा 1 बाई आर माइनस यहाँ पे कितना 1 बाई भाई साहब स्मॉल आर, ठीक है, दिस विल बी 1 बाई स्मॉल आर, समझ में आ रहा है, आर क्यूब बाहर आया और आर स्क्वायर बाई आर क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई आर आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, क्लियरम पीपलम, ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे डेल्टा ए की वैल्यू चेंज इन एरिया की वैल्यू हो गई है, ठीक है, ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज, तो यहाँ पे इफ द नंबर ऑफ, तो वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ठीक है, तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया दैट विल बी 4 पाई आर क्यूब 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर, ठीक है, ये हो गया आपका वर्क डन, क्लियर पीपलम, बला जल्दी बोला, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम, वर्क डन विल बी इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर क्यूब 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर, ठीक है, ओके, अभी वही सेम कहानी, आपका मास कितना हो जाएगा भाई साहब, मास विल बी मास ऑफ द बिगर ड्रॉप, सो मास ऑफ बिगर ड्रॉप विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटू इट्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम भाई साहब कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और क्योंकि भाई साहब ये वाटर से बना हुआ है तो 1, ठीक है, सो ये हो गया भाई साहब आपका 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया आपका मास ऑफ द बिगर ड्रॉप, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, W कैन बी रिटन एज स्मॉल मास ऑफ द बिगर ड्रॉप, इसकी जगह पे लिखा, और ये हो गया आपका सिग्मा 1 बाई आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर, समझम, ओके, यही वर्क डन पिछली बार किसमें कन्वर्ट हुआ था, पिछली बार कन्वर्ट हुआ था भाई साहब काइनेटिक एनर्जी में, इस बार कन्वर्ट हो रहा है आपका हीट एनर्जी में, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इवॉल्विंग हीट, और हीट एनर्जी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, यहाँ पे आपका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो आपका mc डेल्टा थीटा लगेगा, ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा mc डेल्टा t, अच्छा एक और चीज यहाँ पे क्या दी हुई है देखो, J इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, अभी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब आपका ये जो Q है, ये Q देखो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं दी हुई है ना इसकी, 4.2, rise in temperature specific heat capacity, mc डेल्टा t बाई j हो जाएगा भाई साहब, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज ही नहीं किया है का, ठीक है, तो mc डेल्टा t है भाई साहब, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे मास ऑफ द बिगर ड्रॉप, c क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, तो c है भाई साहब आपका, और c की वैल्यू भाई साहब क्या होती है 1, तो यहाँ पे m इंटू 1, और यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, डेल्टा टी की जगह पे अपन क्या ले रहे हैं डेल्टा थीटा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे q को, ये एक्चुअली मैकेनिकल वर्क है, तो मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करने के लिए जूल से कन्वर्ट किया है, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, अभी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट मतलब क्या है, इस प्रोसेस से जो हीट जनरेट हुआ है, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब समझो किसी चीज को मूव कराने से जो हीट जनरेट करते हैं, तो यहाँ पे जूल्स का कन्वर्जन किस में हो रहा है, Q में हो रहा है, ठीक है, तो J जूल्स ऑफ एनर्जी इज बेसिकली गिविंग यू Q जूल्स ऑफ हीट एनर्जी, ये आपका मैकेनिकल है और ये आपका हीट है, J जूल्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज गिविंग यू Q जूल्स ऑफ हीट एनर्जी, तो 1 जूल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी विल गिव यू हाउ मच
Q बाई जे जूल्स ऑफ हीट एनर्जी। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? तो यही है, इसीलिए हम इसको J से डिवाइड कर रहे हैं, Q बाई जे समझ में आ रहा है? दिस इज द एनर्जी विच विल बी रिलीज, ठीक है। सो ये हो जाएगा भाई साहब आपका हीट एनर्जी, दिस विल बी द हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी भाई साहब किसके बराबर होगा? इस वाले वर्क डन के बराबर होगा। वर्क डन और एनर्जी एक साथ चलते रहते हैं भाई साहब, ठीक है। ये जो वर्क डन यहां पे हुआ है यही तो आपका हीट एनर्जी जनरेट करेगा, ठीक है। तो m सिग्मा टू 1 बाई आर माइनस कैपिटल R इज इक्वल टू m डेल्टा थीटा बाई जे, डेल्टा थीटा बाई जे। m और m भाई साहब आपके हो गए कैंसिल। डेल्टा थीटा की वैल्यू है, ये क्या हो गया भाई साहब? mc डेल्टा t बाई जे। जे नीचे कैसे आ गया भाई साहब? अरे अरे अरे, ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। हाँ, मैकेनिकल इक्वल हमने गड़बड़ कर दिया भाई साहब, ठीक है। समझ में आया क्या कर रही है गड़बड़। अरे 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 अरे, गड़बड़ तो हुआ है भाई साहब। 3 इसके समझा समझा समझा। आपका मास हमने यहाँ पे देखो, ये तो हीट एनर्जी हमने गलत किया है यहाँ पे भाई साहब। देखो हीट एनर्जी क्या है? हीट एनर्जी विल बी इक्वल टू mc डेल्टा t, है ना। तो यहाँ पे मास ऑफ द बिगर ड्रॉप, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की होती है 1, और यहाँ पे डेल्टा थीटा की वजह से, डेल्टा टी की वजह से डेल्टा थीटा, ठीक है। तो m डेल्टा थीटा ये हो गया भाई साहब हीट, ठीक है। ये जो है मैकेनिकल वर्क है, इसको भाई साहब कन्वर्ट करना है हीट एनर्जी में, ठीक है। तो जब आपका भाई साहब हमारा यहां पे जब J जूल्स ऑफ एनर्जी है तो वो कितना कन्वर्ट कर रहा है भाई साहब? Q, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे भाई साहब यहां पे J जूल्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, उसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट बेसिकली 1 हो जाएगा। मैकेनिकल इक्विवेलेंट मतलब कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है। J जूल्स ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूसिंग 1 जूल ऑफ दिस, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे कितना है मैकेनिकल वर्क? सिग्मा 4 पाई R क्यू। तो अगर भाई साहब आपका यहाँ पे W जूल्स ऑफ एनर्जी होगा, मैकेनिकल वर्क, दिस इज मैकेनिकल वर्क, ठीक है। और ये आपका भाई साहब हीट एनर्जी है। तो J जूल्स इज प्रोड्यूसिंग 1, तो W विल प्रोड्यूस हाउ मच? पहले 1 पे आएंगे तो 1 बाई J होगा, और W को आएंगे तो इंटू W, ठीक है। तो आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट, इसका मैकेनिकल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई साहब? W, दैट इज m सिग्मा 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर अपॉन J, ठीक है। ये हो जाएगा मैकेनिकल इक्विवेलेंट। क्लियर है? ओके ओके ओके। अभी देखो भाई साहब यहाँ पे आपका डेल्टा थीटा, यहाँ पे 3 आना जरूरी है, 3 आना जरूरी है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे 4 बाई 3 पाई आर क्यूब है ना, इसको अपन ने क्यों डाइजेस्ट कर लिया? यहाँ पे हमने कैसे ये आया है, तक कुछ भी कर रहे हो। तो इसका ये वाला वर्जन आएगा ना भाई साहब, देखो दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी W इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 3 इंटू 4 बाई 3 पाई आर क्यूब 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर। सो ये हो गया आपका सिग्मा, ये हो गया 3 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। ऐसा कर सकते हैं भाई साहब, ये हो गया आपका क्या? मास, ठीक है। मास अगर आप देखोगे कितना होगा, मास ऑफ द बिगर ड्रॉप इज 4 बाई 3 पाई आर क्यूब। हमने यहाँ पे गलत किया, तो ये आपका 3 सिग्मा, ये 3 सिग्मा हो गया। इसकी जगह पे अपन लिख सकते हैं मास 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर, ठीक है। तो इधर हो गई, इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? W बाई J। तो आपका W का फाइनल वैल्यू कितना आ गया? 3 सिग्मा m। सो दिस विल बी बेसिकली W बाई J, दैट इज हाउ मच? 3 सिग्मा m 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर अपॉन J, ठीक है। ये हो गया आपका मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। ये वाला और ये वाला टर्म भाई साहब बराबर होगा, ठीक है। कर लो भाई साहब अभी बराबर। तो इसका मतलब हो गया m डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू 3 सिग्मा m 1 बाई आर माइनस
1/R अपॉन जे। एम कैंसल हम भाई साहब, तो आपका हो गया डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी 3 सिग्मा बाई जे 1/R माइनस 1/R। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम? समझ में आता? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, अभी हम भाई साहब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है आपका प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, आपने देखा कि जैसे अगर हम किसी कंटेनर में, किसी भाई साहब ग्लास में अगर पानी डालते हैं तो वो ऐसा मिनिस्कस फॉर्म करता है, और उसी ग्लास में जब हम मरकरी डालते हैं तो वो ऐसा मिनिस्कस फॉर्म करता है। ठीक है, सो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट हो रहा है, क्या इसको कैलकुलेट करने का कोई तरीका है? मतलब जैसे समझो आपका ये एक बीकर है जिसमें आपने पानी ऐसे रखा हुआ है, तो ये जो एंगल बन रहा है क्या इसको अपन निकाल सकते हैं? या समझो भाई साहब उसी बीकर में जब आप मरकरी रखते हैं तो क्या इस एंगल को आप निकाल सकते हैं? इज देयर अ वे इन विच यू कैन फाइंड इट आउट? दैट्स व्हाट बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी एज ऑफ नाउ। ठीक है, ओके, तो आप देखते हैं भाई साहब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस अ कर्व्ड लिक्विड सरफेस। कोई कर्व्ड लिक्विड सरफेस में भाई साहब प्रेशर डिफरेंस कितना होगा? व्हेन द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड इज कर्व्ड, और कर्व्ड कब रहेगा? कर्व्ड कब रहेगा? या तो जब भी आपका कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस में डिफरेंस रहेगा। कोहेसिव फोर्सेस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के अंदर के फोर्सेस हैं, और एडेसिव फोर्स जिस कंटेनर में लिक्विड है और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स है उसको अपन बोलते हैं एडेसिव फोर्स। ठीक है, ओके, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन द लिक्विड साइड एंड द वेपर साइड ऑफ द सरफेस। वी कंसीडर 3 पॉसिबल सरफेसेस। अभी देखो ये वाला एक सरफेस है, इस सरफेस को देखकर आप क्या बता सकते हैं? किसी बीकर में अगर कोई लिक्विड रखा हुआ एकदम फ्लैट है तो इसका मतलब कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस वैसा बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला जो बनता है आपका जनरली कहां पे? मरकरी और ग्लास में। ठीक है, तो यहां पे भाई साहब आपका कोहेसिव फोर्स एडेसिव फोर्स से ज्यादा है, और ये बनता है आपका वाटर और ग्लास में। यहां पे भाई साहब आपका एडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, यहां पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहां पे कोई कैलकुलेशन का मामला ही नहीं है। यहां पे अगर किसी बॉडी को आप रखेंगे तो उस पर सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा? अपथ्रस्ट, नथिंग एल्स। सरफेस टेंशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। ठीक है, ओके, एज शोन इफ द सरफेस इज प्लेन द मॉलिक्यूल ए ऑन द सरफेस इज अट्रैक्टेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये नीचे जिस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इतने यहां पे भी और यहां पे भी सब इक्वल फोर्स है। द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन इज 0। ठीक है, इस वाले मॉलिक्यूल में आओ, देखो ये वाला मॉलिक्यूल, एक फोर्स इधर जा रहा है, एक इधर एक इधर। ये वाला मॉलिक्यूल देखो भाई साहब, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर। तो एज शोन इफ द सरफेस इज कॉन्वेक्स there is a resultant downward force on the molecule A. For the surface to remain in equilibrium, the pressure on the liquid side must be greater than the pressure on the vapor side. तो आपका लिक्विड साइड का प्रेशर वेपर साइड के प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? क्या ये मामला समझ में आ रहा है? प्रेशर अगर आपका इस तरीके का है तो लिक्विड का प्रेशर आपके एयर के प्रेशर, इफ द सरफेस इज कॉन्वेक्स देन द रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल for the surface to remain in equilibrium the pressure on the liquid side का pressure must be greater than the pressure on the vapor side. ठीक है, और इसका उल्टा यहां पे होगा। ठीक है, okay, as shown if the surface is concave then there is a resultant upwards force due to the surface tension on the molecule. For the surface to remain in equilibrium the pressure on the vapor side must be greater than the pressure on the liquid side. Thus we find that whenever a liquid surface is curved the pressure on its concave side is greater and the pressure on the convex side. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? देखो आपका ऐसा अगर होता है ये, ठीक है, और ये वाला दो ही कर्व सरफेसेस होंगे ना, एक लिक्विड ऐसा हो सकता है और एक लिक्विड ऐसा हो सकता है। ये वाला क्या है? कॉन्वेक्स, और ये वाला क्या है भाई साहब? आपका कॉनकेव है ना भाई साहब, ये लिक्विड है। ठीक है, दिस इज बेसिकली द लिक्विड इन अ बीकर। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके, अभी देखो यहां पे फोर्स किस पे ज्यादा लग रहा है? देखो फोर्स किस पे ज्यादा लग रहा है? इस पे फोर्स ज्यादा लग रहा है भाई साहब। ठीक है, यहां पे फोर्स उस तरफ ज्यादा लग रहा है, तो प्रेशर ऑन द कॉनकेव किस जगह पे प्रेशर ज्यादा होगा? देखो एज शोन, ठीक है, इफ द सरफेस इज कॉनकेव द रिजल्टेंट अपवर्ड्स फोर्स, तो आपका जो रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स, ठीक है, ऑन द मॉलिक्यूल, यहां पे रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स लग रहा है इस मॉलिक्यूल पे। ठीक है, रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स लग रहा है कैसे भाई साहब? सरफेस टेंशन क्या है? सरफेस टेंशन ऐसे जाएगा ना भाई साहब,
सरफेस टेंशन ऐसे जाएगा, इसलिए तो इसका रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सरफेस टेंशन इधर है, क्या ये समझ में आ रहा है? देखो बीकर ऐसा है, इधर से इसको खींच रहा है, ठीक है, ये जो बीकर के पार्टिकल्स है इधर से लिक्विड को खींच रहे हैं, तो फोर्स ऐसे जा रहा है। देखो तो दो फोर्स अगर ऐसे जा रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट बीच में से जाएगा, क्लियर है? तो बेशक अगर फोर्स इस तरफ है तो आपको एक फोर्स इधर बैलेंस करना पड़ेगा। अगर लिक्विड को देखो, अगर ऐसा रहा, देखो इसको समझो, ये बीकर है, वाटर है, वाटर ऐसे है वैसा, है ना, तो क्या हो रहा है, ऐसे खिंच रहा है, ये मतलब इस तरफ से खिंच रहा है सरफेस टेंशन से, तो इस तरफ से अगर खिंच रहा है तो ऊपर की तरफ फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। अगर रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ तो वाटर तो ऊपर चला जाएगा भाई साहब, लेकिन क्या जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब एक डाउनवर्ड प्रेशर भी मेंटेन हो रहा है, एक डाउनवर्ड फोर्स भी मेंटेन हो रही है वाटर की, ठीक है। सो यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, प्रेशर ऑफ, ठीक है, फॉर द सरफेस टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द प्रेशर ऑन द वेपर साइड, ये जो प्रेशर ऑन वेपर साइड है, ठीक है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रेशर ऑन द लिक्विड साइड, तो प्रेशर ऑन द लिक्विड साइड से ये ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको अगर अब आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो कभी भी देखो, whenever a liquid surface is curved, the pressure on its concave side, तो concave side में भाई साहब, ठीक है, concave side देखो ये लिक्विड है, इसमें क्या है, ये वाला साइड कौन सा हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स सरफेस बना रहा है, लेकिन लिक्विड किधर है, कौन से साइड में, ऐसे है ना भाई साहब, कॉन्केव साइड में है। सो whenever a liquid surface is curved, the pressure on its concave side is greater than the pressure on the convex side, ठीक है। तो मतलब ऐसे कर्व्ड अगर रहेगा तो ये हो गया आपका कॉन्केव और ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, तो हमेशा प्रेशर ऑफ कॉन्केव विल बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ कॉन्वेक्स, ठीक है। प्रेशर ऑफ कॉन्केव साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन प्रेशर ऑन द कॉन्वेक्स साइड। आर वी क्लियर? इसी की वजह से वो तो मुड़ा है, ठीक है, इसी की वजह से तो मुड़ा है वो। आर वी क्लियर? ओके। इस फिनोमिना पे एक और आपका फिनोमिना आता है जिसको अपन बोलते हैं कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। कैपिलरी मतलब क्या होता है, जैसे एक लिक्विड को, एक बहुत थिन से स्ट्रॉ को अगर आप रख दोगे किसी पानी में, आपको ये पानी के लेवल से ये ऊपर चढ़ता दिखाई देगा। इसके दो कारण हैं, एक कारण तो ये है कि इस पे प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर का, और दूसरा कारण है कैपिलरी एक्शन विच वी आर गोइंग टू स्टडी। ये कैपिलरी एक्शन बेसिकली आपके सरफेस टेंशन की वजह से होता है। देखो सरफेस टेंशन क्या बोल रहा है भाई साहब, ये ऊपर ले जाने की टेंडेंसी है, ठीक है, ये ऐसा करने का टेंडेंसी है, तो आपने पहले ही एरिया को डिक्रीज कर दिया है और भाई साहब वो टक्कर से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द कैपिलरी एक्शन, वी विल स्टडी दिस, ओके। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप, तो कंसीडर, कितने बजे गए तुम्हारा, खत्म हो गया, इतना पका लिया भाई साहब, ठीक है, जाइए।